for us. Raksha Bandhan tomorrow, and we are pleased to have our mentor, Dr. Sharda Jain, with us. She was the vision behind the integrated clinic, and our clinic was started with this vision to provide, integrated approach in managing and preventing illness. It brings the best modern medicine and natural techniques of healing under one roof. Our team of other doctors have all have 20 plus years of experience. Dr. Ruby Bansal, she is an HIV expert and wellness expert. Dr. Deepika Kohli, she's a clinical nutritionist and dietitian. I myself, I'm Dr. Priya Kapoor. I'm a homeopath and I'm a chronic disease expert. We have a YouTube channel, IWC 360 Degree Care, and you can all subscribe to it for updates on latest current health issues. And ever since the corona pandemic started in March, we have been doing almost 35 plus sessions every day, and this aim of our clinic is to de-stress the society in today's trying times. We have done sessions like stepping out and living with corona and immunity or gateway to health, from fatty liver to fit liver. Fear and anxiety lead to unnecessary hospitalization, and also the session with corona positive patients, how timely action and integrated approach can save lives and lead to a smooth recovery. Today's session is about happiness and fear at the same time. Delivery dilemma in COVID-demic. Happiness or fear? I would shortly hand over the stage to Dr. Ruby Bansal, and before that, I would request everybody to please mute themselves if they get unmuted, so that we can have a smooth session. All of you are welcome to write your queries, and we will all be answered at the end. Over to you, Dr. Ruby Bansal. Yeah, thank you, Dr. Priya. Again, namaskar, everyone. So this is, thank you everybody to be here, especially Dr. Sharda Jain, Dr. Seema Prakash, Dr. Nitika Sopti, and Swechha, Rachna, and all the viewers who are just here with us. So हम लोग कंटिन्यूसली जब से कोरोना शुरू हुआ है ट्राई कर रहे हैं कि कैसे लोगों के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर कैसे लोगों के मन से फियर निकाला जाए, कैसे लोग प्रिकॉशंस लें, कैसे बचें इस कोरोना की महामारी से। और क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है, जैसे कल डॉक्टर सीमा प्रकाश भी बात कर रहे थे हम लोग, कि लोग प्रिकॉशंस को नहीं ले रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शायद कोरोना चला गया है, और हम देख रहे हैं 50,000 से ज्यादा केसेस हमारी कंट्री में आ रहे हैं, और जहां पर केसेस नहीं थे वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चला गया है, डेफिनेटली फियर कम हुआ है। फियर कम इसलिए हुआ है कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अच्छे हैं, और मॉर्टेलिटी कम है। परंतु देखिए, जिसकी भी घर में अगर एक भी मॉर्टेलिटी होती है तो उसके लिए तो वो 100% है। हम भले ही कितना भी कह लें कि हमारी मॉर्टेलिटी जो है 8% है, 7% है, पर वो कोई भी हो सकता है। तो बचाव ही एक उपाय है। तो आज जो है मैं पिछले करीब जब से कोरोना शुरू हुआ है बहुत ज्यादा जज कर रही हूँ कि कैसे प्रेग्नेंट वीमेन जो है कितना ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि बाकी सब काम रुक सकते हैं परंतु बच्चे को आने को तो कोई नहीं रोक सकता है ना। द चाइल्ड विल कम ऑन टाइम, तो डिलीवरीज विल हैपन। तो ये क्योंकि हम लोग बहुत सारी जो प्लान प्रेगनेंसी प्लान जो ऑपरेशंस थे या सर्जरी थी वो रुकी हुई है, परंतु ये वाला काम नहीं रुक सकता। So I just we are very thankful to all the gynecologists who are tirelessly working in this field, because they don't have any option choice. Like I'm physician, I may have option to sit at home. Rather, I am not sit at home. I am just continuously working. But they have a great this thing dealing with all the patients' fear of themselves and the fear of the patient. So सबसे पहले Dr. Sharda Jain has another meeting. I will just ask Dr. Sharda Jain, and I should say Dr. Sharda Jain is 70 plus. She is a high risk group. She is diabetic, but I have not seen a single day when she was not working. I mean, not a single day her clinic was closed. Not a single day she has not she is doing the delivery. She is doing the routine work. एंड कोरोना भी हमने लास्ट टाइम मैम से बात की थी, इनके घर में कोरोना भी हुआ, फिर भी वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हैं। तो मैम जिस आपका एक मैसेज छोटा सा चाहूंगी सभी पेशेंट्स और सभी डॉक्टर्स के लिए कि आप क्या देना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि जब मैं 1964 आई जॉइन द मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, 5 continuous days
one senior professor will walk in with a long coat and ask one thing. It is not too late if you still want to change your mind. You will join medicine, and if the government of India has spent money, the exchequer have spent money on you to train you, then you must be clear that you will be available for patient care. So my fundamentals are clear in those first 5 days when I joined medical college, that बीमारियां आती हैं, हम लोगों को छुप के बैठ जाने के लिए नहीं आती. I am very clear. I must correct what Dr. Ruby has said. I am 73. Yeah, 70 I plus. don't see emergency. I don't see emergency. My diabetes is well controlled. It's my HbA1c is below 6. We'll talk in later sessions how to reverse your diabetes, how to reverse your insulin resistance. That will be a separate topic. Today I'm going to talk about it. I was on day 1 very clear that we are going to keep our practice open. We have stopped our evening practice. Morning practice also we have curtailed it. But we are available to doc patients for 4 hours. No patient can say that you were not available. Now, one thing is clear. But at the same time, we saw to it that we followed, जैसे अभी Dr. Ruby ने कहा, बचाव में ही सब कुछ है. So we trained our staff. Look, staff makes it 95%. I'm only 5%. So those people also have to be trained very well. They did a great job after training. कैसे स्क्रीन करना है पेशेंट को, कैसे उसको टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करना है, कैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन करना है, कैसे कुछ. We were very clear. We were not allowing any patient with fever. But any patient who is pregnant, because I see only high risk patients. वो IVF की प्रेगनेंसी चल रही है, उसे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की प्रेगनेंसी चल रही है, दोस्त को स्टिल बर्थ है पहले, वो कैसे घर में बैठ सकते? नहीं बैठ सकते. So we saw these patients. Now the only thing was we did, we found during this particular time was that there were increased incidents of threatened abortion and miscarriages. Could be avoided. Because fear एक नाम की ऐसी चीज है which can do any harm. But when we took our patients for delivery, it was elective delivery. We did tell them about this. We did all COVID tests done, took all precautions, and everything is absolutely all right. Fear is all here. हमें अपने fear को अपनी meditation से, अपनी affirmation से, इन सब चीजों से हटाना है. I am very clear. People like me who is doing meditation, मुझको बीमारी नहीं होगी. मैं 100% तो नहीं बोल सकती, but I feel if you take due precautions, take extra precautions. मैं डरती नहीं हूँ. कोई भी कहते हमारे क्लिनिक में कि वो पेशेंट आया, उसको हाथ से टच करके नहीं देखा, उसका एब्डोमेन एग्जामिन नहीं किया, उसका सब चीज हमने सब किया. जैसे हमारा पहले देखते थे वैसे ही हमने किया. Not like any other patient की पेशेंट को 6 किलोमीटर दूर पे बिठाया और फिर उसको पेशेंट को देखा. We did everything. But still we are there. None of our patients have had problems. जो किसी के फैमिली में लोगों को अगर कोविड हो गया तो उनको भी कोविड हो गया. They were managed from the house. कि भाई ठीक है, जब तक आपका कोविड नेगेटिव नहीं होगा तब तक आप क्लिनिक में नहीं आए. But I feel it's all here in the mind. The fear is in the mind. मेरे को कोई ये कहते हैं कि मैंने किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी की, no. But the precautions we know कि what all precautions have to be taken. We don't take any unbooked patients. So our question does not arise. In spite of it that people knew it that they are COVID negative, my staff saw to it that they were wearing all PPE kit. I use PPE kit in my 4 patients. After that's it. I will take other precautions. I will double mask, shield, everything. But I found, this PPE kit was for me was suffocating. So with these words, I will ask Dr. Ruby to take over. Thank you, ma'am. So quickly I will ask Rachna. Rachna जो है मुझे 6 महीना पहले मिली और बहुत ही ज्यादा डर में थी. रचना अगर आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें तो जस्ट इसकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि जो है कैसे इसका फियर कम हुआ. इसको बड़ा ये कोरोना के फियर की वजह से 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुकी है और सिर्फ इसी डर से कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा अबॉर्शन हो जाएगा. So रचना, just बहुत क्विकली
अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और शी इज अबाउट टू डिलीवर विद इन अ डे और 2, सो अभी कोई फियर है क्या रचना? मैम डॉक्टर दीपा, तुम्हारी डॉक्टर दीपा भी यहीं पर है। वेरी गुड। ओके आज ही मिल के आए मैम से। मैम एक्चुअली और जगह डॉक्टर से थे, उनसे बात होती रहती थी, 4 या 5 महीने तक ट्रीटमेंट चला, मगर जैसे ही कोविड आया उन्होंने फोन उठाना सब कुछ बंद कर दिया। रूबी मैम का नंबर मिला, मालूम नहीं कैसे कहाँ से मिला, इनसे कांटेक्ट में आया। रूबी मैम ने जो क्या कहते हैं इलाज कराया, सब कुछ बोला है, मतलब हर एवरी वीक ऑनलाइन क्लासेज ली, समझाया। ये तो बिल्कुल हिम्मत छोड़ चुकी थी कि मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि हम पहले एक बार इस दौर से गुजर चुके हैं, आईओडी हो चुका है और आज वही तारीख है, मगर हमको हिम्मत है, हम नहीं हारे। मैम आप मिली जब से हमें बहुत हिम्मत मिली, वरना ऐसा लगता था कोई भी हॉस्पिटल हमें जो लेगा ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं करा। जब हमारी पुरानी डॉक्टर ने हमारा फोन व्हाट्सएप वगैरह सब मतलब हमको ब्लॉक कर दिया कि बोल दिया अब कोविड चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी फैमिली है, हमसे मतलब सब बिल्कुल नाता तोड़ लिया। हम बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें, मगर रूबी मैम मिली। रूबी मैम ने एवरी वीक हमको जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस दी, मेडिटेशन, निकिता मैम के बारे में बताया, उनकी जो है सब्सक्राइब करा चैनल, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर डॉक्टर दीपा मैम से जो है मतलब जाते थे वहां से, उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आना है वो आएगा, टेंशन मत लो। थैंक यू रचना। मैम बॉर्डर, एक बात कहना चाहता हूँ, बॉर्डर पे सोल्जर करते हैं और यहाँ पर आप दोनों को सैल्यूट है, सभी डॉक्टर को सैल्यूट। थैंक यू। सो आई विल गो टू डॉक्टर सीमा प्रकाश। डॉक्टर निकिता आपसे भी सुनेंगे, क्योंकि आपसे मुझे फियर पर बहुत सारी बात करनी है और आपकी वर्चुअल पर। अभी पहले डॉक्टर सीमा प्रकाश से थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर सीमा, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हैं और बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आप देख रही हैं। मैंने भी जो है 1-2 कोविड पेशेंट्स, जब क्योंकि प्राइवेट में अलाउड नहीं था कोविड पॉजिटिव को डिलीवर करना, तो हमने आपके पास भी कई पेशेंट्स भेजे हैं। और डॉक्टर दीपा ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप डिलीवरी कर रही हैं, तो इट वाज ए चैलेंज डेफिनेटली, पर वी ट्राइड कि कोई हमें कॉल करे तो हम हेल्प कर सकें, तो किसी को भी। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे लोगों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को, कैसे जो है बच्चे की आप देखभाल करते हैं, और आपके काफी सारे नंबर्स हैं कोरोना पॉजिटिव के, आपने कैसे आप खुद का ध्यान रख रही हैं? Basically, we have been seeing these only COVID patients since 2nd June. Our hospital, GTB hospital, was converted into a complete COVID hospital. Before that, we were seeing suspects also and general patients also. And since we have been declared COVID, we have been seeing only COVID patients. And till date, we have seen around 85 patients. Who were pregnant, some of them were ectopic, and some of them with lot of complications. But still, I will like to share that mortality rate in GTB of pregnant patients is only 3%, which is quite okay according to other data, other countries' data. So otherwise, we have been receiving, like in GTB, we normally receive only high risk referred patients and those who are not managed at other places. तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही थी पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑल्दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड भी किया जा सकता है. बेसिकली यू हैव टू हैव अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. You have to just change according to the rules of pandemic. Like you have to take proper precautions. Don't go out, and if you are going out, proper wearing of mask is very important. I have seen people, they come to the hospital, they know it is a COVID hospital, and their mask is up to this level. Yes. And second thing, which I have noticed lot of time, that people, although their mask is here, but they keep on touching it. They will touch it at least 5 times, 6 times. So that touching of mask is to be avoided completely. And if anyhow you touch your mask, keep a sanitizer handy with you, so that anytime if you are having a urge to touch your mask, first sanitize your hands, then touch it. And otherwise also you should avoid it.
Second thing is complete dietary, you should have some modifications in your diet. Have a high protein diet. Vitamin C is very important. Vitamin D is important. It has been observed in several studies that they are helpful. We are giving some medicines when the patient comes to us, we start medical management, which is I think we'll not be discussing the medical management. No, But ma'am. yeah, but I will like to say that vitamin C, vitamin D, calcium, these are very important. Zinc, these supplementation, every patient should start as soon as they think that they are pregnant, they are seeing their gynecologist. Immediately that should be started. Other medications, whichever have been prescribed to that, they should continue with that. But these are important. And second thing, which is saying BP, control of BP is very important. It has got an effect on heart. जो जिन लोगों का भी पहले प्रेगनेंसी में कभी प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन रहा हो या कोई कार्डियक डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है बिकॉज अल्टीमेटली द डेथ इज बिकॉज ऑफ ईदर लंग और हार्ट कंडीशन. So that has to be taken care of. आप लोग शुरू से ही उसका ध्यान रखेंगे. जैसे ही आपको ये पता चलता है कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है, immediately you should rush to your doctor, talk to your doctor. Telephonic consultation is equally good. टेलीफोनिकली कंसल्ट कर लें और कभी भी जब सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स के साथ घर में ना बैठें, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम. जैसे कि अगर आपको माइल्ड है तो माइल्ड में हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स को भी घर पे ही अलाउ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि माइल्ड सिम्टम के भी पेशेंट्स, मतलब प्रेगनेंसी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता कि अगर प्रेग्नेंट है तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हम एडमिट करेंगे. दे कैन आइसोलेट एट होम. बट मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशंस में एडमिशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं. सीवियर में तो खास करके होता है. इंक्यूबेशन की जरूरत, जो आप सोचते हैं कि वेंटिलेटर की जो जरूरत है, वो हार्डली 1% पेशेंट्स में पड़ती है, लेस देन 1%. तो जो मतलब मैं सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स और उनके जो भी रिलेटिव्स अभी यहाँ पे ज्वाइन करके बैठे उनको ये बताना चाहूंगी कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्रेगनेंसी के साथ कोविड हो गया. कोविड इज समथिंग विच यू शुड नॉट बी फ्राइटन्ड ऑफ. मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका सामना करना है. सामना करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी है. प्रिकॉशंस के अलावा आपको अपना डाइट, अपना जो टैबलेट्स बताई जाती है वो सब लेनी है. और जो आपके आसपास के लोग हैं उनका खास ध्यान रखना है. बच्चे पैदा होने के बाद एक खास चीज होती है कि ये लोगों में वो होगा कि जिनकी मदर्स को कोविड है वो बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे और बच्चा उनके पास नहीं आएगा. हम लोग उनके बच्चों को ऑल्दो नर्सरी में भेज देते हैं, इमीडिएटली पैदा होते ही बच्चा नर्सरी में जाता है, पर मदर फीड कर सकती है उनको. ओनली प्रिकॉशन इज वो मास्क लगा लेती है मदर्स. एंड मदर की जब कंडीशन ठीक होती है तो हम उन्हें बच्चा फीडिंग के लिए देते हैं. ऑल्दो बच्चा, मतलब जब तक बच्चे का स्टेटस नेगेटिव नहीं होता वो घर नहीं जा सकता. मदर एंड बच्चा दोनों नेगेटिव होने के बाद हम घर भेजते हैं, लास्ट सिम्टम्स के 10 डेज के बाद घर भेज दिया जाता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब मैं बेसिकली सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि डरे नहीं, बस दमे रहे और डटे रहे पूरी प्रिकॉशंस के साथ, तो कुछ नहीं होगा. मतलब अच्छे से डिलीवरी भी होगी. और डिलीवरी में भी हम, आप ये देखेंगे कि डिलीवरी में आजकल हमारे पेशेंट ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि एक साथ 4 डॉक्टर एक पेशेंट के साथ हैं. नॉर्मली नहीं तो सरकारी में कहाँ एक डॉक्टर मिल जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है. पर अब क्या है कि 3-4 डॉक्टर्स वहाँ जो ड्यूटी पे हैं वो 4-5 पेशेंट्स को देख रहे हैं. तो दैट वे यू विल फाइंड इट अ प्रिविलेज, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सीमा प्रकाश ने. और आई थिंक हेड्स ऑफ टू ऑल द गवर्नमेंट डॉक्टर्स, बिकॉज वही एक फ्रंट लाइनर है और वही जो है सोल्जर की तरह डरे हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पर. उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दे कैन नॉट से नो. मैं फिर से कहती हूँ कि मैं फिर भी अपनी चॉइस से प्राइवेट में हूँ, घर पर बैठ सकती हूँ छुट्टी लेकर, पर सरकारी डॉक्टर नहीं बैठ सकते. तो हमेशा लोग कहते हैं कि हमारा सरकारी सिस्टम खराब है, पर आज आप देखिए कि सरकारी सिस्टम ने ही पूरे देश को संभाल रखा है. तो ये तो जो है सभी की, डॉक्टर्स को सभी को सलाम, डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम. और डॉक्टर्स जो है सभी इस तरह से काम करते रहे, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो. ह्यूमन है, एवरीबॉडी इज ह्यूमन, तो वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर. थैंक यू डॉक्टर सीमा प्रकाश. आप अभी यहीं पर रहिएगा और हम आपसे फिर से कुछ बातें करेंगे. तो मैं जो है आती हूँ डॉक्टर थैंक यू. डॉक्टर नीतिका, मैं आपसे जो है यही जानना चाहती हूँ, आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, बहुत अच्छी एक डॉक्टर हैं,
और वर्च्यू बेबी आपका एक बहुत ही अच्छा जो एक इनिशिएटिव है वो चल रहा है और काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत सारे बच्चे वर्च्यू हो रहे हैं। तो आप कोविड के टाइम में आप कैसे लोगों को बता सकते हैं? काफी ये क्वेश्चन है कि मदर फियरफुल हो तो वो कैसे फियरलेस बच्चे को जन्म देगी? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, क्योंकि आजकल की मदर इतनी डरी हुई है। तो आपसे थोड़ा सा उन मदर्स के लिए बातचीत प्लीज मैम। जरूर, थैंक यू डॉक्टर रूबी। आई थिंक जो इंटीग्रेटेड वेलनेस क्लिनिक आपने शुरू किया है, ऐसे क्लिनिक्स अगर सब जगह शुरू हो जाएंगे तो कोई भी सिचुएशन में फियरलेस लेना बहुत नेचुरल हो जाएगा। ये वर्च्यू बेबी प्रोजेक्ट मैंने इस इंटेंशन से शुरू किया था, इट्स बीन नाउ आई थिंक 4 years कंप्लीट, कि मदर्स के अंदर जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसको क्यों हमें देखना चाहिए, हम क्यों एज डॉक्टर्स उसको कम नहीं कर सकते। बट रियलाइज ये मैंने तब किया जब मुझे लगा मैं अपने स्ट्रेस और एंजाइटी पे कंट्रोल कर सकती हूँ। सो दैट वाज द टाइम आई थॉट नाउ आई कैन मेक अ डिफरेंस टू माय पेशेंट्स। जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर सीमा ने, डॉक्टर शारदा ने, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जब, और हम बहुत सारी चीजें अपने कर रहे होते हैं, बट द मोमेंट हम अपने आप को क्लियर कर लेते हैं, जैसे अगर आज मुझे कोविड के बारे में पूरी नॉलेज है तो फिर मुझे कोविड पेशेंट को डील करने में प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने उस नॉलेज को लेने के लिए वर्कअप किया है, देन आई एम फियरलेस टू मैनेज माय पेशेंट। मैम ने कितनी अच्छी बात बोली कि हमने बहुत पीपीई पहने, बट आफ्टर सम टाइम वी थॉट मैं प्रिकॉशंस लूंगी, आई डोंट वांट टू मेक माय सेल्फ अनकंफर्टेबल, बट आई विल टेक प्रिकॉशंस। कैसे आया वो कॉन्फिडेंस? वो कॉन्फिडेंस तब आया जब हमने उसके बारे में पूरा नॉलेज ले लिया, हम उस राह पे चल गए, तो फिर हम अपनी ये फियरलेसनेस अपने पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह वर्च्यू बेबी में मुझे पहली बार इन 4 years में लगा कि इस प्रोजेक्ट ने कितना डिफरेंस क्रिएट किया है पेरेंट्स के अंदर। मतलब इट वाज सो नेचुरल, और मैं ऑनेस्टली शेयर करूंगी, मैं अभी स्टडी के तौर पे उसको नहीं कर पाई हूँ कंपाइल, बिकॉज देयर हैव बीन टू मेनी प्रोटोकॉल्स जो बनने थे। मैं मैक्स में हूँ, आप जानते ही हैं सब, और मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में हमारे को एक बहुत फायदा है कि हर चीज बड़ी पॉलिसी रिलेटेड होती है और हर चीज के प्रोटोकॉल्स जो है सबसे मिलके बनाए जाते हैं, तो अप टू डेट रहने का बहुत बहुत चांस मिलता है। चाहे कोविड हॉस्पिटल साकेत बना, बट उसका बेनिफिट जो सारे नॉन कोविड ग्रीन हॉस्पिटल्स थे उनको भी बहुत आया। तो पेशेंट स्क्रीनिंग, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट की कहाँ पे अगर वो सिम्टम वाला है सस्पेक्टेड तो क्या करना है, अगर वो कंफर्म नेगेटिव है तो कहाँ करना है, एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट, फॉर अस, फॉर ऑल द पैरामेडिक्स। तो ये साथ हमें बहुत अपने इंस्टीट्यूशन का मिला। और वर्च्यू बेबी ने उन मदर्स को ऐसे पकड़ के रखा था, क्योंकि हमने लास्ट अपनी जो वर्कशॉप थी, जो हम वीकली वर्कशॉप करते हैं, वो 7 मार्च को की थी। तो ऑब्वियसली वो सारे पेशेंट्स ने अभी तक तो डिलीवर होना ही था। ओनली वन सिजेरियन आई हैड टू डू फॉर अ प्राइमरी ग्रेविडा फ्रॉम 15th of March टिल अभी तक, ओनली वन। मतलब इट वाज सच अ थिंग जो मैंने आज तक इन 4 years में फील नहीं किया। एंड द रीजन वाज we were so connected online. There were so many minutes of mindfulness that we shared together in the community. क्योंकि जब आपको नॉलेज हो गई खुद एज अ डॉक्टर, आपने वो सारी नॉलेज अपने पेशेंट को इम्पार्ट कर दी, वो कॉन्फिडेंस आता है उनको, उनसे आप बात करते रहते हैं, उनको लगता है वी आर टेकन केयर ऑफ। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि एक टाइम था अराउंड अप्रैल मिड का, उस समय पे इट वाज लाइक द मोस्ट टफ फेज, बिकॉज तब हमारे किसी के पास गाइडलाइन नहीं थी कि अगर पेशेंट पॉजिटिव होगा तो हम उसे डिलीवर कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल। वो 20-25 दिन में वी हैड टू रेफर द पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव आए टू अ नियरबाई हायर सेंटर। सो दैट वाज द ओनली चैलेंजिंग टाइम। बट हमने तब तक एक पोटा कैबिन अपने हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी में क्रिएट कर लिया था, जहां पे हम पेशेंट को मॉनिटर कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। जब तक वो कोविड टेस्ट उसका ना आया, पॉजिटिव मतलब रिजल्ट नहीं आया, तब 24 आवर्स लगा करते थे कोविड टेस्ट के लिए। तो मतलब हर तरीके से अगर मुझे लगता है हम मन से सॉर्टेड आउट हैं, तो हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी कोई चीज बोलते हैं तो वो लोग उसको भी अवेलेबल करा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट इस पूरे सिचुएशन में यही है कि हम सॉर्टेड आउट रहें, कनेक्टेड रहें, नॉलेजफुल रहें। तो डरने की बात नहीं है, बट ध्यान जरूर रखना है।
और करेक्ट करते रहते हैं कई बारी बार बार पेशेंट्स को, मुझे लगता है कनेक्ट करते रहेंगे ना उनके साथ बार बार, तो वो ऑटोमेटिकली पावरफुल फील करेंगे। सेकेंड चैलेंज जो मैं सब पेशेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगी, उनको ये आया था, एक तो कि मेरा डॉक्टर है या नहीं वो आया था, तो वो तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया बिकॉज कनेक्शन बहुत क्लियर था। दूसरा ये था कि व्हेन दे वर कमिंग फॉर लेबर एंड डिलीवरी, दे फेल्ट कि कैसे होगा, कोई बड़ा ही नहीं है घर में हमारे, हम कैसे दो लोग आके, मैम एक दिन लगेगा लेबर में, दो लगेंगे, तो मतलब सपोर्ट सिस्टम। थैंकफुली हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो क्लासेस काफी अटेंड करते थे, तो वो भी अच्छा सपोर्ट सिस्टम थे, बट फिर भी मेल फिगर एक सपोर्ट सिस्टम इन आवर लेवल ऑफ सोसाइटी जितने भी एडवांस्ड हो 20% रोल ही प्ले करता है। बट इस बार उन फादर्स ने ट्रिमेंडस रोल प्ले किया और विश्वास इतना था, सबसे पहले अपने सुप्रीम पेरेंट पे विश्वास था, क्योंकि मैंने कहा देखो आप भी उसी को याद कर करके आओ और मैं भी उसी को याद कर करके प्रोटेक्शन ले लूं, बिकॉज इस फेज में और तो कोई बचा सकता नहीं। तो वो माइंड की स्टिलनेस इतनी इम्पोर्टेंट थी डॉक्टर रूबी, और आई एम श्योर मैम, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर शारदा ने एक्सपीरियंस किया होगा, और तभी ये सारी क्लिनिक शुरू हुई है। अगर वो एक्सपीरियंस ना किया होता तो ये वेलनेस क्लिनिक ही नहीं होती, क्योंकि जब हम उस कंफर्ट को फील कर लेते तो हमें दिल करता है कि हम सबको वो ट्रांसमिट करें। तो वो इतना कनेक्शन एक दूसरे से, इतना ट्रस्ट और फेथ, लेबर्स भी ऐसे प्रोग्रेस हुई कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल, मतलब एक एक डिलीवरी का एक्सपीरियंस उस समय पे इतना डिवाइन था। तो मैंने तो यही बोला उनको भी, मैंने कहा देखो ये बच्चे याद करेंगे कि ये उस चैलेंजिंग कोविड टाइम में आए थे, पर एक चीज याद रखना कि ये चैलेंजिंग कोविड टाइम में जो बच्चा आए उसने कितनी एडजस्टमेंट देखी है, आप सोचो उसके अंदर कितना संस्कार आया एडजस्ट करने का, उसने इतना फियर को टैकल किया, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन से वो गुजरा, उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ करते देखा, इस टाइम पे कोई हेल्प नहीं, सेल्फ रिलायंट होते देखा। तो ये बच्चा तो हमारा वैसे ही वर्च्यू बेबी बन गया, जिसने सारी पॉजिटिव चीजों को देख लिया। फियर को टैकल करना भी तो एक पॉजिटिविटी है। अगर हम एक फियरफुल पर्सन थे और हमने उसको बाहर आके और उस एक्सपीरियंस से निकल के आप एम्पावर्ड पर्सन बन के आए, एक एम्पावर्ड पेरेंट बन के आए, तो ये बच्चे को तो हमने एक्स्ट्रा गुण दिए, जो रोज दे रहे थे ना इन 6 महीनों में ज्यादा ही दे के आए हैं, कि अगर कोई काम करने को भी नहीं मिलेगा 6 महीने ना, तो सब काम भी खुद कर लेना फिजिकली। अगर आपके पेरेंट्स के आसपास नहीं हो और आपको चैलेंज हो ना, तो भी आप स्ट्रांग होके उस सुप्रीम पेरेंट को याद करके वो टाइम निकाल लेना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है डॉक्टर रूबी, इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी एंड लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के। हाँ, प्रिकॉशंस की कोई कमी नहीं थी, बिकॉज वो उनको बार बार बोला गया। इनफैक्ट हमने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, मैं सबसे भी शेयर करना चाहूंगी। हमारा जो सस्पेक्टेड वाला एरिया था वो हमने बिल्कुल अलग करा था अपने रूटीन लेबर रूम से। हम सब जैसे सब करा रहे 37-38 के आसपास कोविड टेस्ट करा लेते हैं और फिर एडमिशन पे रिपीट कर लेते हैं इफ द पेशेंट कम्स आफ्टर 5 days of getting the first test done। तो वो एक अलग एरिया में था। पर जो भी पेशेंट्स कोई 35 वीक्स पे आ गया, कोई 36 पे ही आ गया, तो हमारा उनके लिए अलग जगह थी। तो वो पूरा हमने अलग एरिया ओटी क्रिएट कर लिया था और हमने वहां पे ना 1-2 प्रॉपर स्टैंड बनवा लिए थे और वहां पे बीच में पूरा वो जो हमारा गाउन होता है ना, हमारा स्टेराइल एप्रन वाला जो शीट होता है, जो वो प्लास्टिक शीट हमने वो वाइट वाली पूरी लगा दी थी बीच में। सो उस वे में लेबर इज अ टाइम जब आपको बहुत हाइपोवेंटिलेट भी करते हो। मदर को हम कोशिश करते थे मास्क देने की, लास्ट के 2 घंटे थोड़ा मुश्किल होता था उसको, तो खुद वाइजर पहन लो, सारी सिस्टर्स डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, पर वो बीच की जो शीट थी हमने 2 एंड वॉल टू वॉल से वो लगा दी थी, तो उससे बहुत हमें ईज मिला, ताकि एटलीस्ट हमारी वो पूरी सीलिंग से नीचे तक आती थी और मदर के एब्डोमेन के ऊपर जाके वो रुकती थी ऐसे। So that really helped us. छोटी चीजें, but helped us a lot. Thank you, Dr. Nitika. Actually, time is flying, and these Zoom meetings don't give us extra time. So that's fine. I just thank you very much. बिल्कुल हमारा टाइम खत्म होने वाला है। मेरे पास 2 पेशेंट्स और हैं। I don't know whether we will be able to complete with them. डॉक्टर दीपा, आपका एक्सपीरियंस, आप हमारे लिए पिलर हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को आप देख रही हैं और बहुत सारे अदर पेशेंट्स को। डॉक्टर दीपा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने सीखी वो था प्रिकॉशन के साथ पॉजिटिविटी।
अगर आप पॉजिटिव हैं तो जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं वो आपको देख के खुद सेफ फील करते हैं कि डॉक्टर डर नहीं रहा है, उसने मेरी कुर्सी चैम्बर से बाहर ही बिठा लगा रखी है। अगर डॉक्टर हमने प्रिकॉशन ले रखी है, शील्ड पहन रखा है, मास्क लगाया है, दैट्स इट। पेशेंट कमरे के अंदर आ रहा है, उसने भी मास्क लगा रखे हैं। तो मैं तो सारे पेशेंट को देखती हूँ। फीवर तो हम लोग पहले से बाहर में स्क्रीन आउट कर लेते हैं, पेशेंट फेब्राइल है कि नहीं है फेब्राइल। अगर पेशेंट फेब्राइल नहीं है और पेशेंट हमारी बुक पेशेंट है तो मैं सबको बहुत ही प्यार और बहुत ही पास बिठा के देख लेती हूँ। मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा होता है जिससे मैं उसको टच कर पाती हूँ ग्लव्स पहन के, तो देखना ही पड़ता है, हार्ट बीट देखना पड़ता है, पीवी चेक करना पड़ता है। तो हमारा इंटरेक्शन कोविड पेशेंट के साथ 3-4 बार हुआ। फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, कोविड पॉजिटिव आई हमारी बुक्ड पेशेंट 1 जून को, एंड उस वक्त हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, मुझे उसको रेफर करना पड़ा और वो दिन भर भटकती रही। फाइनली सफदरजंग जाके उसका एडमिशन हुआ और रात के 5 बजे उसका सी सेक्शन से बेबी हुआ। वो बहुत ट्रबल में थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब एक थोड़ा सा सेपरेट ओटी हमने बनाया है, सेपरेट सेग्रीगेटेड सा सेगमेंट बनाया है जहाँ पे कोविड पेशेंट को, अभी मैंने एक सर्जरी करी कोविड पेशेंट की, शी वाज पॉजिटिव बट एसिम्प्टोमेटिक, और बच्चा उसका नेगेटिव आया। फिर जैसे सीमा ने बताया कि अगर नेगेटिव बेबी है तो हम उसको फीड करा सकते हैं मदर के पास भेज के मास्क के साथ। पेशेंट थ्रू आउट एसिम्प्टोमेटिक रही, हमारे पास 7 दिन तक हमारे साथ रही। हमने कंसल्ट किया रेस्पिरेटरी टीम के साथ, उन्होंने कुछ मेडिसिन ऐड किए जो वो देते हैं रूटीनली सबको, और पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई सेल्फ आइसोलेशन में। आफ्टर 10 डेज उसका रिपोर्ट फिर नेगेटिव आ गया। I should thank everybody. Dr. Priya, would you like to say anything? Yes, Any question? Dr. Ruby, just quickly one question we would like to take. Patients asking, what are the chances of COVID being transmitted to the child? How many, if Dr. Seema can answer, how many out of 85 are COVID positive children? Yes, ma'am. Dr. The Seema. positivity rate is very low in even in positive mothers who delivered, and at the time when they were delivered, they were positive, but positive children were very few. Like out of 85, only 6 were positive, found to be positive, and the reason may not be breast milk; it may be skin contact also. So we don't know still the reason of it. So it is hardly 2 to 4% normally in a COVID positive patient who is symptomatic. So it is not much. Thank you. The babies were all fine. I thank all the participants, all the panelists for their time and their experience. It is a blessing to have you here, and we will be back soon next Sunday with another session. Kindly join. Jai Hind. Together we will and we can fight Corona. Thank you, everybody. थैंक यू डॉक्टर रूबी, आपने मुझे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मौका दिया। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि यस, कोविड-19 जो इस साल चल रहा है और मेरी डिलीवरी भी इसी साल होनी थी और बहुत डर रही थी मैं भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कैसे हम लोगों ने प्लान कर लिया और सारे हॉस्पिटल्स में इतने सारे कोविड पेशेंट्स हैं, हम कैसे जाकर डिलीवरी कराएंगे। बट ट्रस्ट मी, जो भी अभी कंसीव कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स इस समय बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं और कोई भी डरने की बात नहीं है। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं तो सब ठीक हो जाता है, और डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है। कोविड का टेस्ट भी हुआ था, नेगेटिव आया था और उसके बाद डिस्चार्ज मिल गया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। सब कुछ ठीक रहा और बहुत अच्छे से हो गया था। और हेल्दी बेबी बॉय मुझे हुआ था, ये बेबी बॉय मेरा। इट वाज गुड। मैं यही बोलूँगी कि डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड। और हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर सब बहुत सपोर्टिव हैं, सब ठीक हो जाएगा।